कॉमर्स कैंडिडेट्स, आर्ट्स कैंडिडेट्स और कुछ अलग साइंस बैकग्राउंड के भी हम लोग लेते हैं. And second thing about this webinar, the webinar topic is intangible of growth and success. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको सक्सेस का कंसेप्ट ही पता नहीं होता है. मीन्स हमको जस्ट वी नो द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, बट एक्चुअली होता क्या है वो हमको नहीं मालूम है. अगर पेरेंट्स बोलते हैं आपको फ्यूचर में जाके डॉक्टर बनना है, तो ठीक है, हम लोग डॉक्टर पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारा खुद का उसमें कुछ इंटेंशन ही नहीं है, सो हम लोगों को सक्सेस नहीं मिल पाएगा. और सक्सेस एंड ग्रोथ बोथ आर द डिफरेंट कंसेप्ट जो आप लोग इस वेबिनार में देखेंगे. And I really thankful of Mentor Mitra, and I don't know the all team, but I know the Vriddhi and Ankur. So I'm very thankful both of you and all the Mentor Mitra team to जो जिन लोगों ने हमारे साथ collaboration किया है. And honestly, I have attended your webinar, 2 webinar I have attended in pandemic situation with Mentor Mitra. And I guess कि आप लोगों का जो मोटो है, मतलब आप लोग जो बोल रहे थे कि स्टूडेंट्स को स्किल्स देना या फिर सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग देना, एंड वो वेबिनार अटेंड करके मुझे लगा कि आप लोग बहुत ही इजी वे में वो कंसेप्ट स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं. एंड दैट व्हाट वी नीड, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो कैंडिडेट्स का ग्रुप होता है, दे डोंट नो द फ्लुएंट इंग्लिश, राइट. उनको फ्लुएंट इंग्लिश नहीं पता है, दे आर कमिंग फ्रॉम द कम्युनिटी बैकग्राउंड. तो उनको ऐसे तरीके का सेशन चाहिए होता है कि जो उनको लैंग्वेज में आप लोग बता पाएंगे. इसलिए मैंने पूर्वा से भी कहा था कि वी नीड इंग्लिश एंड हिंदी वाला मिक्स वेबिनार. सो आई रियली थैंक्स टू मेंटोर मित्र and all Mentor Mitra team. Thank you so much. Thank you. So thank you so much for the lovely introduction, Miss Arshia and Dr. Bhaskar. We're so glad to collaborate with you today. And now I would like to request Rupangi to continue with the speaker's introduction. Sure. Now I would like to introduce our speaker for the morning, Mr. Anil Sharma. Mr. Anil Sharma is an engineer, MBA, and has 25 plus years of corporate experience in leadership positions. He strongly believes that life skills, emotional quotient, not just intelligent quotient, and knowledge of self-management needs to be learned, which requires right mentorship and training. The same should be done in one's life sooner than on a job for lasting success and happiness. Now, I would like Mr. Anil Sharma to continue. Hi, everybody. Good morning. And it's amazing to know that in India, we have a women's university started in 1916 by a great social worker or a saint. And that is how Srimati Nathibai Damodar Thakur se university came into being. I was also going through the pages and I was amazed at the range of programs that do right from e-learning to language to social sciences, computer science. And I also saw what Lifelong is doing and a lot on non-formal education. So had this webinar not been arranged, I would not have learned so much. I have heard the name before, and as a passing reference, I'm grateful that an organization like this exists in this country and would have already touched many, many lives. Thank you, Dr. Bhaskar, for giving a preview on what is being done, and Dr. Arshia, that you've been regular at our webinars and you thought कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं उधर. और Mentor Mitra team, you mentioned Ankur and Vriddhi. Yes, they are co-founders, and the young co-founders, they are enabled co-founders who have gone through the process of mentoring, और फिर उन्होंने decide किया कि ये और लोगों को भी मदद कर सकता है, and that is how Mentor Mitra came into being. Mentor Mitra team told me to tell the audience that webinar is one of the engagement and through which dissemination of the
information and what we believe in is done. They're going to have products centric to school students, university students, and working professionals digitally available within this month, and some of them are paid, and some events would be like free. And because they're putting a lot of effort and very quality people, there is a CSR arm of the program, and maybe we could talk to the concerned people on how we can collaborate to help more and more people associated with the university. Uh, Anil is my name, पेशे से इंजीनियर MBA हूँ, more than 25 years से corporate में काम कर रहा हूँ, and I did a little bit of tried my hand on a couple of other things. I tried to do things which I wanted to do, or gone through some life experiences which helped me realize that intangibles for growth and success are important. But it did take 25 years to realize those intangibles. तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर जब मैं 20 साल का था, जब मैं 25 साल का था, जब मैं 15 साल का था, अगर मुझे पता होता कि intangibles are actually going to be more important, making right choices is going to be more important, I would have been able to do better. I would have been happier. I get that happiness, that calmness, that satisfaction for what I do and who I've become, but it has taken its time. So why this program? Because we want a lot of youngsters to save that time. I also can promise you that this program is not enough. The name of the organization which you have is Lifelong Learning and Extensions. So learning lifelong ही रहने वाली है. What you learn today will be forgotten tomorrow. I've been a part of continuous education program for 20 years myself and kept evolving. After me, you're going to hear Ms. Pooja Avasthi, who's spoken globally on leadership and issues, and she's been on part of a continuing education program, and that's why we can very confidently say that learning जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है और रुकनी नहीं चाहिए किसी भी डायरेक्शन में. सो एकेडमिक अचीवमेंट ओके, तो आप एक टाइम आता है आप सोचते हो मैंने ये कर लिया, वो मेरे को पगार मिलेगी, मेरे को इतना पैसा उससे मिलेंगे, यस दैट्स इंपॉर्टेंट, बट how can you sustain that? क्या आप उस पर ग्रो करोगे? सो आई जस्ट पुट डाउन व्हाट intangibles ऑफ ग्रोथ और सक्सेस क्या नहीं है, क्या है वो भी बात करेंगे. आपके ग्रेड्स और मार्क्स टेंजिबल्स हैं जो आपको दिखते हैं कि इतना आया, तो मैं फर्स्ट आया क्लास में, सेकंड आया, 10th आया. आपकी एकेडमिक स्किल, योर एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्या आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा करते हो, वो आपकी टेंजिबल है, which will help you get a relevant employment maybe, or develop a skill which can create tangible outcomes in form of income. Your IQ, okay, I would say that IQ is very important and so is EQ, but it cannot be a constraint. It can improve, you can measure it also. कितने घंटे हम लोग काम करते हैं. I have यहाँ पे मेरा दो मन है कि 9 out of 10 times or 8 out of 10 times I still feel hard work is actually the smart work. But there are times when you have to start thinking कि hard work में क्या करना और smart work में क्या करना. So number of hours is typically not a measure of your success. Okay. And I'm also जब intangibles पे बात करते हैं तो मुझे ध्यान यह आता है, 3 Idiot पिक्चर ध्यान आती कि सक्सेस के पीछे नहीं भागो, enjoy what you do, love what you do. So what I mean to say, we have to probably redefine success for youngsters. It's not how much they can earn. Of course it is very important, and I appreciate Ms. Arshia speaking. If a woman is earning, yes,
and I can say I have two daughters that I keep telling them a woman should be always financially independent, and that gives her pride, that gives her, and that's why they should not be distinguished. That's the biggest thing they can do for themselves, to claim all the change they want in the society and for them. And I think it should be a continuous process of creating a ripple effect of this thought. Vehicle use for growth, किसी का business है, किसी का job है, वो वो भी एक माध्यम है अर्निंग का. सो दो रिलेशनशिप है उसकी. एक आपकी कुछ सेटिस्फेक्शन, समटाइम इट इज, समटाइम यू कीप डूइंग व्हाट यू डोंट वांट टू डू फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ बिकॉज वो पे कर रहा है कुछ. व्हीकल यूज फॉर ग्रोथ इज कि या तो कुछ काम धंधा कर रहे होगे या आप नौकरी कर रहे होगे. क्वांटम ऑफ अर्निंग एंड योर पोटेंशियल, नो यू नो आई वुड से कि ये बीच में है. आईक्यू इसमें टेंजिबल्स इंटेंजिबल्स दोनों लगते हैं, बट एक पॉइंट के बाद आपके इंटेंजिबल्स की वैल्यू ज्यादा है ऑन हाउ यू थिंक एंड कंडक्ट योरसेल्फ. तो एक अर्निंग पोटेंशियल क्रिएट होता है विद योर डिग्री फ्रॉम द कॉलेज यू आर, फ्रॉम विच यू स्टार्ट. नाउ योर पोटेंशियल एंड माय पोटेंशियल वी स्टिल डोंट नो येट. वी हैव नॉट प्रोबब्ली कंप्लीटली रियलाइज. आई एम 51 नाउ. सो वो अनलॉक करने के लिए we need to know more than what we study in the school and the college and the university. Looks, how good looking you are, or impression, I think they are not long lasting even if they help somewhere. Next slide please. And क्यों important है intangibles के बारे में जानना. Intangibles को हिंदी में क्या कहेंगे कि जो वो चीजें जो गुणात्मक हैं, जो क्वांटिफाइबल नहीं है, तुलना जो तोली नहीं जा सकती या नापी नहीं जा सकती. वो नपती तब है जब आप वो पर्सन बन जाते हो जो आप बन सकते थे. ये भी आपको शायद आज पता नहीं होगा कि आप बनना चाहते थे. Pooja ji is going to talk about goals and begin with an end in mind. But I feel that, you know, a person keeps evolving and the goals also keep changing, but it's important to have goals. क्यों जरूरी है इंटेंजिबल्स के बारे में जानना? क्यों जानना? गुणात्मक रूप से हम कैसे बेहतर हो रहे हैं ये जानना इसलिए जरूरी है कि ये पढ़ाया नहीं जा रहा है. अब यहाँ मैं गलत था because I saw that Lifelong Institute is actually doing a lot of work and Miss Arshia just spoke about it. So there, you are very rare as a faculty, as a program, as an organization. It's a very good thing which you are doing. And while I was preparing, I didn't know that. But last night when I read about your programs, I was amazed कि आप MPhil PhD भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में करा रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स भी कराते हैं. So it is partially true, and that's why I wrote most of syllabus and institution don't teach it. घर में टीच होता है. हम संस्कारों की बात करते हैं भारत में, पर सब पिक नहीं करते. I know a lot of children very different, leading very different value system from their parents, and it's majority today, maybe. And so what I'm trying to say, and then जो वो सीख सकते थे क्या वही सही थे कि उनको सक्सेस की तरफ ले जाते कि सिर्फ पूजा पाठ तक लेके जाते. So I'm saying हमारे संस्कार कई बार हमको खोलते हैं और कई बार हमको बांधते भी हैं. So to be able to understand what is right and what is wrong, what is moral and what is immoral, one individual has to be aware, self-aware, evolved to understand कि क्या कुरीति है और क्या संस्कार है. For example, so I would say फैमिली से मिलते हैं जरूर बहुत सारी हैबिट्स, बहुत सारी वैल्यूज, बहुत सारे संस्कार, पर क्या वो काफी हैं? I don't think so. I don't think they are defined also to create success and potential. They were started with a very noble values and morals. I see they are limiting. Lot of our value system, so-called value system, limits women, for example. तो वो थोड़ा सा एक सही गाइडेंस की होना
और अच्छी समझ खुद को होना कि अपना भला बुरा समझ सकें, और जब 10 बार आपने भला बुरा सही समझा और 8 बार आप ठीक हो तो आप सही सोच रहे हो, थोड़ा बहुत गलती हो सकता है, देन दैट्स व्हाई फैमिलीज और इंस्टीट्यूशन में स्ट्रक्चर नहीं है, वी कैन मूव फॉरवर्ड। एंड क्या है वो इंटेंजिबल जिनकी हम आज बात करने वाले हैं? इफ वी कुड गो टू द नेक्स्ट स्लाइड विद। ओके, क्यों जानना जरूरी है? इसलिए भी जानना जरूरी है कि हम हमेशा सक्सेस की बात करते हैं। एक बच्चे को स्कूल में डालने से पहले ही पता होता है, या उसके पैदा होते ही पता चलता है वो क्या बनेगा टाइप्स, और हम उसको सक्सेस की तरह डिफाइन कर देते हैं, और ये हम सिखाते ही नहीं बच्चों को कि सक्सेस, और ऐसे हम प्रूव करते हैं या ऐसे हम कंडक्ट अपने आप को करते हैं नॉर्मल लाइफ में, वेदर इट इज पेरेंट्स, फैमिली, टीचर्स, I mean, not all of them. Please, it is not a generalization. I'm just saying that all of us wired in a way that जो क्लास में 1 2 3 4 5 6 आ गया हो तो फिर भी ठीक है, पहले 10 में आ गया, top 10 is fine. But what about the rest? Should they start considering there's some failure? इस तरह का कुछ हमने लोगों के दिमाग में डाला है. You know, I was also Tech Mahindra started by Mr. Mahindra, Mahindra's family. 1973, he was in Harvard in the same batch as Bill Gates. And I was watching a video in which he met him in 1997. And he said, buddy, Mr. Bill Gates reminded him that we were probably in the same batch. He said, no, yes, but we never met. And you have made me feel lower in eyes of my daughter, because once she knows that you are my batch, she calls me a loser, despite Mr. Mahindra is such a success. So I'm just saying, and he was a dropout, Mr. Bill Gates. उन्होंने नहीं किया अपना हार्वर्ड पूरा, मिस्टर महिंद्रा ने किया. So I'm just saying, ऐसा कोई, both are very successful and both very good examples of following. But प्रूव किया टाइम एंड अगेन लोगों ने कि एकेडमिक अचीवमेंट इज नॉट ए मेजर ऑफ सक्सेस. कक्षा में पहली, दूसरे, तीसरे नंबर पे आना इज नॉट ए मेजर ऑफ सक्सेस. फेलियर इज ए पार्ट ऑफ सक्सेस. जीवन में जितना ज्यादा फेलियर मिलेगा उतना ज्यादा सक्सेस मिलेगा. दे आर नॉट द अपोजिट्स, दे गो हैंड इन हैंड. और आपका अगर ट्रू पोटेंशियल आपको या मुझको अनलॉक करना है, वो कितना है वो तो पता नहीं, मैं पहले भी बोल चुका हूं. वो अनलॉक होगा ज्यादा फेलियर से. वी डोंट सेट ए गोल फॉर फेलियर, बट यू नो व्हाट, व्हाइल सेटिंग गोल्स, हमको अपनी डेस्टिनेशन में क्या क्या हर्डल हो सकती हैं उनको प्लॉट अगर हम कर लेते हैं, so we know the possible failures. We have to go through prepared for those failures, and that is when we will achieve our success. आप अगर अपने पूरे करियर में 30-40 साल काम करके अगर माइलस्टोन देखेंगे तो 10 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे. उसके बीच में सब कुछ जर्नी है, and failure is a daily part of this. Every day you don't like something which is said to you, which is pointed out to you. Do you consider it as failure? Oh, इतना ही कंसिडर करना उसको. रोज जाना, फिर भी सुबह जाने का मन नहीं करता तब भी जाना. And that is a part of discipline, and I mean, next speaker is going to talk about it. While tangible make you reach destination as sight, intangible are foundation. आगे next slide. So what are intangible? Rule number 1, पहला रूल ये है कि लोगों से डील करना थोड़ा सा हमको आना चाहिए. और everybody has written on his forehead that I'm important. I'm important. And you are thinking I'm important. So how do you are important. You are the most important person in your life. And I saw a movie called Chichore, and a kid tries to do something with himself and realizes in the end, the most important thing in your life is life itself. So वो तो आप तो important हो, but जब दूसरे से डील करते हैं तो उसके माथे पे लिखा है वो भी important है. Or we meet people where they are, we give them due importance, that's when they give us due importance. इस चीज को हमेशा अगर याद रखेंगे
will try not to hurt people more. And that's a skill. That's a skill which pays you more than marks, because every day 8 hours 10 hours you work with people. All your life that is going to happen. How you talk to them, how you deal with them, how you collaborate with them, वो बड़ा important है. And अगर वो नहीं, उसको नहीं सीखे तो बहुत सारी स्किल जो हमारी हमको उतनी हेल्प नहीं करती जितनी इतना जानना that people are important, they want to talk about them. और इस बात की समझ करने के लिए हमको हम्बल होना है, ह्यूमिलिटी चाहिए कि हम हर किसी से डील कर सकें एक ही तरह से. इन द सेंस एक ही तरह से मतलब अपना एटीट्यूड और बिहेवियर कॉमन रख के, हम्बल रख के, दूसरे को उसकी इंपॉर्टेंस देके. यू विल गेट योर्स व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट एंड दे विल मेक यू फील इंपॉर्टेंट टू. बट who has that goal to achieve what one wants to achieve, he or she wants to achieve? If you are that person, then you will be humble enough and you will have humility in your character to allow people to come to your life. You engage with them, go and move with them, collaborate with them, and do things with them. And I've talked somewhere else about it, and I'll talk more. Or third, I wrote keeping the main thing, and not getting lost in the means. So, example, मेरी कक्षा में मेरे को इतने स्कोर करने हैं, ये टेंजिबल अचीव करने के लिए एटीट्यूड क्या चाहिए? मेरी कक्षा में मेरे को टॉप करना है कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, या चलो मुझे इतने मार्क्स लाने हैं कि मैं फला कॉलेज में एडमिशन, फला कोर्स में पा सकूं. पर अब पहले ही दिन पता चल गया ये तो 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा. ओह, मैं तो घर से दूर रहती हूँ, और घर पे तो मैं रोटी खाता था, इधर तो चावल मिलता है. एग्जाम्पल. ओह, the books are not available, the internet is not available, for example. Whom can I ask? Yeah, these are the constraints you have to plot. तो फिर important तो ये सब नहीं है ना, important वही रहेगा. I have written my China story. So मैं कुछ साल चाइना रहा, जिसकी वजह से कुछ लोग मुझे समझते हैं, मुझको काफी पता है उसके बारे में. एंड एक चाइनीज कंपनी ने मुझे बुलाया लास्ट ईयर. उन्होंने बहुत सारे इंजीनियर्स और एमबीएस को रिक्रूट किया था, 30 को चाइना भेजना था फॉर इंडक्शन. एंड दे वर सेलेक्टेड फ्रॉम द टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया. एंड द एचआर हैड न्यू मी एंड शी टोल्ड मी दैट प्लीज एड्रेस देम एंड गिव देम कंफर्ट. दिस वाज आई थिंक इन जुलाई लास्ट ईयर. एंड आई वेंट एंड आई आस्क्ड देम व्हाट इज देयर प्रॉब्लम. So they were asking, sir, I'm vegetarian. Will I get food? Okay. How far is market from this place where we are going to stay? Are there restaurants? What can we get in restaurant? How is cold? How is hot? All that. And they were otherwise very happy. They were working with a global company. And then I asked them, सारी उम्र लगा के 20-25 साल पढ़ाई के लगा के, 15 साल पढ़ाई के, 16 साल पढ़ाई के लगा के इधर पहुंचे. You got the best job in your life. How much food can stop you from achieving something? So, keeping the main thing was that you spent all your life to achieve. Now it is in front of you. Should there be constraint? Because the HR head was talking to their parents to convince them that everything is fine. And I said, nobody will call now to your parents to tell them you send your child. You have to go, you will survive. All of you will survive. I'm a vegetarian. I survived 3 years in China. So, and I was told everybody went, nobody came back. And December, I was sitting in a Indian restaurant in China, and I found 5 of them eating with. And then they said, sir, we heard you. And I said, how was it? And they said nothing. So, हमने अपने fear को इतना बड़ा कर लेते हैं कई बार, अपनी hurdle को इतना बड़ा बना देते हैं कि मेन थिंग ही किस लिए करना भूल जाते हैं. तो किसी का क्या दोष उसमें? फिर आपको याद रखना है ना. If you are a woman who wants to stand on her feet and prove to the world, do it. Hurdles तो आएंगी. मैं
मेल साइड से नहीं बोल रहा हूं, आई एम जस्ट सेइंग दैट इट इज अ कंटिन्यूअस चेंज प्रोसेस एंड यू कैन नॉट ऑलवेज कीप अ टैब ऑन इट। कैन आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? परसुएसिवनेस, लोगों को, हमारी एबिलिटी की लोगों से एंगेज करें और उनको परसुएड करें उस चीज के लिए जो है तो ठीक बट उनको लग नहीं रही, और तब तक वेट करना जब तक हम वो अपना काम कर ना रहे। और सो परसुएशन को हम कह सकते हैं मनाना, बहलाना नहीं, मनाना। मनाना है लोगों को अपने व्यू पॉइंट से। कैसे करोगे? लड़के, पोजीशन ऑफ पावर को यूज करके, जोर से बोल के, चिल्ला के, हाँ पुराने तरीके हैं। नॉर्मल, अच्छा उसका सही तरीका यही है, अपने पॉइंट को सही तरह से रखना और समझना और समझाना। और अगर आपको ही लगता है गलत हो रहा है तो आप समझ लो फिर। पार्ट ऑफ परसुएसिवनेस। पोस्चर, पोस्चर का क्या मतलब हुआ? पोस्चर मीन्स एबिलिटी टू होल्ड योरसेल्फ अपराइट व्हेन सर्कमस्टांसेस डोंट सजेस्ट। जब स्थिति ठीक ना भी हो, आपका वातावरण आपके फेवर में ना हो, आपका एनवायरनमेंट आपके फेवर में ना हो, लोग आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां आपको अपना पॉइंट पुट अक्रॉस करने की भी डिफिकल्टी है। व्हाट गिव्स यू कॉन्फिडेंस? योर पोस्चर गिव्स यू, you're right, that you are thinking right, and you have to go the next step and put your point, and you don't need to be weak even when there are obstacles, even when there are people against you, and not feel weak especially when you're right. That's posture. Have you kept a very high posture and say sorry? आपने अपना स्वाभिमान भी रखा और सॉरी भी बोल दिया, कोई बुरी बात नहीं है। वो कहां से बोला? पोजीशन ऑफ पावर और वीकनेस, गिल्ट से नहीं। अगर आप ठीक हो तो फिर गिल्ट से नहीं। और अगर हमने किसी की बात माननी, उसको कह दिया कि मैं यहाँ हूं और मैं ऐसे सोचता हूं, बट दैट रिलेशनशिप इज सो इम्पोर्टेंट टू मी दैट इट्स ओके। सो दैट्स पोस्चर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस आई हैव टॉक्ड, डीलिंग विद सक्सेस एंड फेलियर। मुझे लगता है कि आप समझ के चलो ना, फेल होना गोल नहीं है, फेल होना पार्ट ऑफ द जर्नी है टू अचीव सक्सेस। अगर वो आएगा नहीं पार्ट में तो सक्सेस भी नहीं आएगी। बस इतना ध्यान रखने का, आइडेंटिफाई करना फ्रॉम वेयर द फेलियर कैन कम। 5 की रिलेशनशिप्स, ये मुझको ऐसा लगता है कि मेंटरशिप एंड 5 की रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं एक एग्जांपल देके ये बताऊंगा एंड आई क्लोज माय टॉक। पूजा जी इज गोइंग टू टॉक अबाउट मेंटरशिप। 5 की रिलेशनशिप्स, 5 वो लोग जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं और जिनसे आपकी अच्छी ऐसी रिलेशनशिप है, और ये चेंज होंगी, कॉलेज में चेंज होंगी, कल स्कूल, पहले स्कूल में अलग होंगी, फिर ऑन मेकिंग दोस राइट डिसीजंस कि आप सही कंपनी में हो कि नहीं। आप बात क्या कर रहे हो उन लोगों से जिनसे आप रोज बात करते हो सबसे ज्यादा? आर दे एनकरेजिंग और डिस्करेजिंग? Are they leading you in direction of your goal or opposite? I'll just give you an example of my 2 daughters. My elder daughter, when she was in class 8th, मैं उसके साथ 15 दिन छुट्टी पे गया और पहली बार गया, और मुझे लगा इस बच्चे में तो बहुत इनसिक्योरिटीज हैं। उसकी 2 फ्रेंड्स ने उसकी लाइफ आराम कर रखी थी बिल्कुल। आई मीन, आई एम सॉरी टू से लाइक दिस। वो कोई चीज खरीदनी है उसने अपने लिए, देन शी विल टॉक अबाउट दोस 2 फ्रेंड्स। She was so intimidated and I just felt ये ठीक नहीं है, she has to change. Now she was a kid and I could not impress upon her. और उसने, मैंने धीरे धीरे बच्चे को कंफर्ट किया for 2 weeks and I told my wife that these were summer holidays, that in these summer holidays my daughter is going to have 10 more friends. And जब हम वापस आए हॉलिडे से तो हमने वो फैसिलिटेट किया that she has 5, 6, 7 new friends. And it was a little longer process. This child has turned out, this 5 key relationship thing and her self-belief and her hard work has made her studying in one of the top universities, in one of the top institutes of the country today. And she's a very confident child and I'm very proud of her today. My second daughter, same thing.
One girl kept intimidating her in her class 7th, 8th so much that this child lost confidence. वो अकेली हो गई, चुप हो गई. And I was telling my wife, and she was also feeling, but इसका उसके साथ बात करना इतना important हो गया था कि ये उसके बिना ही नहीं रह पा रही जैसे. और वो इसको कुछ भी बोलती है, बच्चे का कॉन्फिडेंस जाता है. नंबर भी कम आ रहे थे, हमको नंबर की इतनी चिंता नहीं थी, बच्चा हैप्पी नहीं था, उसकी बहुत चिंता थी. एक दिन वो खुद ही परेशान होके उसको बोल के आ गई, यू आर टॉक्सिक एंड दिस इज नॉट राइट. आई डोंट नो, वो घर में ये सारी चीजें भी सीखती है जो मैंने आपसे बात की, तो उसको पता है कहीं कब अपनी बात कहनी है. वो पता नहीं क्यों इतनी देर तक वेट किया. हमने बहुत एनकरेज नहीं किया कि वो किसी को हर्ट करे. उसने बोला, she get out of that relationship with her friend, and within next 3 to 6 months she made 5 new friends. It so happened that those 5 friends were toppers in the class. They always wanted to talk to her. Or within 6 months, she's from maybe 60-70%. This kid is in 95%. She tops in in last 2 years, ever since that happened, she tops the school. She's a very confident child. उसकी अपनी वेबसाइट है, 10th क्लास में है, वो लिखती है और मेरे से अच्छा लिख सकती है. She's finding herself, and she's very vocal about every issue surrounding women, surrounding society. तो किन 5 लोगों से एसोसिएट करना है? 5 नलायकों के साथ एसोसिएट करते हो तो उनके आसपास पहुंच जाओगे. 5 अपने से होशियार लोगों के साथ पहुंचते हो तो उनके जैसे बन जाओगे. वो शायद इतना आसान नहीं हो, पर आपको कोशिश करनी वही है कि उनके ऐसे लोगों से एसोसिएट करें. क्या आपके बेस्ट फ्रेंड आपके अच्छा नहीं सोचते? शायद सोच ही नहीं सकते. अगर वो वैसा सोचते नहीं तो वो रहेंगे आपके बेस्ट फ्रेंड. जरूरी नहीं हर चीज उनसे डिस्कस करने का. दैट्स व्हाई 5 की रिलेशनशिप. सो आई वुड से कि जो मुझे बोलना था मैंने बोला. वी विल टेक द क्वेश्चन इन द एंड इफ देयर आर. आई वुड लव टू हियर फ्रॉम मिस पूजा अवस्थी. शी इज अ friend for 20 plus years. We've grown together through a program, and I'm very proud to be associated with her and the families. And she is somebody who I respect a lot for how she thinks and puts across and believes in uh, power of woman, and is a leading example of somebody who's totally independent in her thinking and in her thinking and her acts. So look forward to hearing Pooja more than I could speak. Thank you very much. Over to Pooja. I thank Mr. Sharma for sharing his experience and insights with us. Our listeners took away some lessons and topics today that can help them through their obstacles. Now I would like to introduce the second speaker for the session, Ms. Pooja Avasthi. Ms. Pooja Avasthi is a leadership coach. She has been an educationist and an entrepreneur, a soft skills expert, and an image consultant. She has extensively worked in the areas of leadership development and has conducted 1,000 plus sessions in the leadership, soft skills, and wellness counseling, while having mentored thousands of families for health and wellness. I would like Ms. Pooja to continue. Pooja ma'am, you're on mute. If it's okay, you can unmute. Can you hear me now? Yeah. All right. Okay. 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 So I think मैं शुरू से start करती हूँ because शायद mute ही रह गया वो. Thank you for introduction. और अनिल जी ने बहुत अच्छी तरह से बहुत सारे intangibles को cover किया. And मैं खासकर शुक्रिया करना चाहती हूँ डॉक्टर भास्कर और आर्शिया मैम का, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छी तरह से बताया कि SNDT यूनिवर्सिटी क्या काम कर रही है और कितना बढ़िया काम कर रही है. और जब मैं आर्शिया मैम को सुन रही थी तो मैं
बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी सुन के, बिकॉज जब विमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, जब औरतों से बात करने की बात आती है, लेडीज से बात करने की बात आती है, तो मुझे एक बहुत खुशी होती है, बिकॉज आई थिंक मैं बहुत अच्छी तरह से इस चीज को रिलेट कर सकती हूँ, विमेन एम्पावरमेंट को रिलेट कर सकती हूँ, और अगर मैं कुछ छोटा सा भी कर पाई इस दिशा में हेल्प करने के लिए, तो आई थिंक मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझूंगी, और मुझे आज ये मौका मिल रहा है, राइट। सो सारे लेडीज हैं, जो काफी हद तक लेडीज हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और बहुत डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से हैं, शायद एज ग्रुप्स भी बहुत अलग अलग हों, उनकी परिस्थितियां बहुत अलग हों, उनके बैकग्राउंड बहुत ज्यादा अलग हों, तो मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे अर्शिया मैम ने कहा कि विमेन एम्पावरमेंट आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है, डेफिनेटली, बिकॉज जब आप एम्पावर होते हैं, जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, तो उसमें बहुत पावर है सही चॉइसेस लेने के लिए लाइफ में, और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे वो हमारा परिवार हो, बिकॉज कहा जाता है कि अगर औरत एम्पावर्ड है और औरत कुछ करना चाह रही है उस घर की, तो वो घर में वैसे ही बहुत ज्यादा खुशहाली और खुशियां आ सकती हैं। मैं यहाँ पे आपको 2-3 छोटे एग्जांपल्स देती हूँ जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया इस दिशा में। हम 2 बहनें हैं, और मेरी माँ एक टिपिकल हाउसवाइफ थी, बहुत शिद्दत से उन्होंने हमारी परवरिश की है, हर समय हमारे लिए वो थी, कोई भी छोटी सी छोटी जरूरत वो इंश्योर करती थी, वो अपने अपने रोल को बहुत सीरियसली लेती थी, और वो इंश्योर करती थी कि हमारी लाइफ बहुत सही रहे, बचपन हमारा बहुत सही रहे। एंड उसके बाद जब शादियां हो गई हमारी, मेरी और मेरी छोटी बहन की, तो वो बहुत अकेलापन उनको महसूस हुआ, और मैंने उनका ये अकेलापन देखा, क्यों? बिकॉज उनकी जिंदगी हमारे आसपास सेंटर्ड थी, और फिर बहुत ज्यादा उनको अकेलापन कि अब मैंने क्या करना है, मेरी जिंदगी क्या है। सो वहां पर मैंने एक मेंटल एक डिसीजन ले लिया था कि मैं अपनी जिंदगी में ये नहीं चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि मैं जिंदगी में कुछ करती रहूं, अपना कुछ करूं। और मैंने ये कहीं पे पढ़ा भी था कि जब माँ अगर किसी चीज में लगी हुई हैं और काम कर रही हैं, तो वो सबसे अच्छा गिफ्ट है उनके बच्चों को, क्योंकि मुझे बहुत गिल्ट फीलिंग होती थी कि अब मेरी मदर अकेली है, मुझे बहुत फिक्र होती थी उनकी। अगर कुछ ना कुछ उनके पास भी होता करने को, तो शायद मैं शुरू के साल, जो हर लेडी के साल थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, आप नए घर में एडजस्ट कर रहे होते हो, तो मुझे वो उतनी चिंता नहीं करनी पड़ती, राइट। और मैं एक चीज मानती हूँ कि जो हाथ क्रेडल को रॉक हिलाता है, वो दुनिया को भी रूल करता है। कैसे रूल करता है? क्योंकि वो अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाता है, और जहां पे मदर्स कुछ कर रही होती है, वहां पे बच्चे सीख जाते हैं जिंदगी में कुछ करना, नहीं तो कहीं ना कहीं उनको जिंदगी भर ये एक गिल्ट फीलिंग रहती है कि जो हमारी मदर ने किया शायद हम अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहे। तो ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है अपने बच्चों के लिए भी, राइट। और हम एक माइंडसेट से आते हैं कि ये औरत का रोल ये है और आदमी का रोल ये है, और इस तरह से चीजें होती हैं। आई थिंक आज वो माइंडसेट नहीं है, और आज हमें डेफिनेटली अपने लिए कुछ करना है, बिकॉज अगर हम अपने लिए कुछ करेंगे तभी हम अपनी डिग्निटी और अपनी, जैसे पोस्चर की बात करी अनिल जी ने, ये सारी चीजों को हम संभाल के जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और मेरे लिए सक्सेस की परिभाषा बहुत ही सिंपल है। मेरे लिए सक्सेस की परिभाषा बहुत पैसा, बहुत समय, ये सब चीजें नहीं है। मेरे लिए सक्सेस की परिभाषा है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर आप बैलेंस क्रिएट कर पा रहे हैं, जहां पे आपके पास पैसा भी है, भगवान ना करे वो जरूरत है, वो आपको एक पोस्चर देता है, वो आपको एक डिग्निफाइड जिंदगी जीने के काबिल बनाता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास समय का भी बैलेंस हो, आपके पास रिलेशनशिप्स का भी बैलेंस हो, ताकि सबको सबको साथ रख के हम आगे जिंदगी में बढ़ सकें, और फिर वो चीजें कर सकें जो वाकई में हमारी जिंदगी में मीनिंगफुल है। तो बहुत सिंपल है, और सक्सेस पाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हमने इस वर्ड को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया और बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं, अरे सक्सेस ये, सक्सेस वो। इसको अगर हम सही तरीके से देखें तो बहुत आराम से हो जाता है। और मैं हमेशा सोचती हूँ विमेन आर मल्टीटास्कर्स, वो जिंदगी में बहुत सारी चीजें कर सकती हैं। मैंने हमेशा जिंदगी में काम में मैं व्यस्त रही हूँ, और थैंकफुली मैं कहना चाहूंगी कि मुझे बड़ी सपोर्टिव फैमिली मिली, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। बट मैं उसके साथ एक और चीज भी कहना चाहूंगी कि सपोर्टिव इसलिए है बिकॉज उन्होंने भी मेरी डिटर्मिनेशन देखी, राइट। उन्होंने देखा मेरी डिटर्मिनेशन को। तो जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बढ़ बढ़ के ही आपको कहे तो आप तभी जिंदगी में कुछ आगे
कर पाएंगे, इसकी वेट भी नहीं करनी। आपकी इच्छा, आपकी डिटर्मिनेशन, वही बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ने की। और जैसे मैं कह रही थी, इस पेंडेमिक टाइम पे लॉकडाउन हुआ, घर के सारे काम करने पड़े, सारे काम बहुत अच्छी तरह से भी हो गए, जो नहीं आते थे वो सीख लिए और अब वही कर रहे हैं। और मुझे लगता था पहले कंपार्टमेंटलाइज में कर लेती थी कि अच्छा मैं बाहर काम कर रही हूँ तो शायद मैं घर का काम नहीं इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाऊंगी, पर मैंने रियलाइज किया ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से हो जाती हैं। आपने सिर्फ अपने आप को प्लान करना है। अगर आप प्लानिंग अच्छी तरह से कर रहे हैं तो जिंदगी में कोई भी काम नहीं है जो आप कर नहीं सके। सो आई थिंक ये भी हमने ध्यान में रखना है, राइट। और अब मैं आपसे कुछ इंटेंजिबल्स के बारे में बात करने जा रही हूँ। ऑफ कोर्स पहला इंटेंजिबल ड्रीम्स और गोल्स हैं, क्योंकि कई बार हम काम पे लग जाते हैं, कई बार हमें लगता है अरे हमें ये करना है, पर हम भूल जाते हैं कि हम ये क्यों करना चाहते हैं या इससे क्या होगा, या जिस रास्ते में हम जाना चाह रहे हैं वो ये रास्ता सही है, वो मंजिल जहां पे हम पहुंचना चाह रहे हैं, क्या उस मंजिल के लिए ये रास्ता सही है। तो सबसे पहले डिसाइड करना कि आपकी मंजिल क्या है। वैसे तो कहा जाता है जिंदगी एक डेस्टिनेशन नहीं है, जिंदगी एक जर्नी है ना। और उसी उसी में मजा है, बिकॉज उसी में आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत मेमोरीज क्रिएट कर सकते हो। जिंदगी से बेहतर टीचर कोई नहीं होता लाइफ में, प्रोवाइडेड आप सीखने के लिए हर समय तैयार रहें। सो मुझे यहाँ पे एक कहानी याद आती है कि दो घुड़सवार थे, घोड़े पे जा रहे थे। दोनों रास्ते में मिले, मतलब एक दूसरी तरफ से आ रहा था, एक दूसरी तरफ से आ रहा था। तो एक बंदे ने दूसरे पर्सन को पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कह रहे जाना तो मुझे थोड़ा सा पीछे था, पर ये घोड़ा सीधा ही जा रहा है और मैंने सोचा अब इस घोड़े से कौन पंगा ले, तो मैं आगे ही निकल रहा हूँ, राइट। आप सोचिए कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही होता है, हम जाना कहीं और चाहते हैं, बट कहीं और के लिए निकल पड़ते हैं और फिर हमें लगता है अब क्या चेंज करेंगे, कहाँ बदलेंगे, जो हो रहा है सो होने दो, राइट। वो फिर सक्सेस की परिभाषा जहां पे आप कहते हो ना आप बैलेंस क्रिएट करके मीनिंगफुल चीजें कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, राइट। तो बहुत जरूरी है जानना कि आप क्या चाहते हो। और मैं यहाँ पे हमेशा हर इंसान को कहती हूँ, जिससे भी मैं सपनों के बारे में बात करती हूँ, जागते हुए सपने, सपने मतलब जिस दिशा में आप पहुंचना चाहते हैं, आप 5 ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें लिखिए। आप आज घर जाके लिख सकते हैं, आपके पास अभी नोट बुक है तो आप अभी लिख सकते हैं। कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो वाकई में आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि ये तो होनी ही होनी है, ये तो मुझे करना है, जिसको सोच के शायद आपका आपका दिल भर आए, जिसको सोच के आपको लगे कि अरे ये हो जाए तो मजा आ जाए, है ना। वो ऐसी 5 चीजें आपके लिए क्या मायने रखती है, और हर इंसान के लिए वो अलग चीजें होंगी, किसी के लिए वो कुछ भी हो सकता है, राइट। सो वो चीजों को आप निर्धारित कीजिए, 5 ऐसी चीजें। और उसके बाद आप एक 10 साल का टाइमलाइन बना लीजिए, जिसमें आप 1 साल, 2 साल, 5 साल और 10 साल डाल दीजिए। और 10 साल में अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसको ब्रेक डाउन करके आप उसको 5 साल, फिर 2 साल और फिर इस साल क्या आपने करना है। छोटे छोटे कदम आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएंगे। ये ब्लूप्रिंट है आपकी जिंदगी का, इसमें थोड़ा सा समय लगाइए। बहुत कम लोग ये चीज करते हैं, बट यही है जो डिटरमिन करता है वेयर यू आर राइट नाउ टू वेयर यू कैन बी। वो क्या चीजें हैं जो आप हासिल कर सकते हैं, ताकि आप वो वाले इंसान ना बने जो कहे कि काश ऐसे होता। आप वो वाले इंसान बने जो शायद कभी अपने बच्चों से या आगे करके बोले, अरे मैंने ये सोचा था, मैंने इस हिसाब से काम किया और ये चीजें होने लगी। आप सोचिए कितना ज्यादा आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। मेरे लिए एक और सक्सेस की परिभाषा है, मेरे लिए एक सक्सेस की परिभाषा है कि मैं अगर किसी की भी लाइफ में एक छोटा सा भी इम्पैक्ट कर पाऊं तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस है। इमेजिन जब आप कुछ अच्छी चीज करके उसको आगे बताते हैं तो उसका कितना ज्यादा एक एक इफेक्ट होना, एक रिपल इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, राइट। सो आप ये करेंगे तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा, आप में क्लैरिटी आ गई। और कहा जाता है जहां पे दिमाग में क्लैरिटी होती है ना, अगर आपको रास्ता ठीक से नजर आ रहा है तो आप तेजी से जा सकते हैं। अगर धुंध है और अगर रास्ता ठीक से नजर नहीं आ रहा तो हम बहुत स्लो निकलते हैं, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा, समझ ही नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है, डाउट हो रहा है, राइट। ये सारी चीजें हो रही हैं। तो आइए उस डाउट को क्लियर करें, ये पहला स्टेप करके, एंड देन बिगिन विद एन एंड इन माइंड। अगर आप पहुंचना पूना में है और अगर आप मुंबई पहुंचना चाहते हैं या दिल्ली पहुंचना चाहते हैं तो उसके हिसाब से ही आप काम, उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर लेंगे। शायद आपको दिल्ली आते आते टाइम लगेगा, पर आप सही डायरेक्शन में तो जा रहे हैं,
क्योंकि आपको पता है आप क्या चाह रहे हो। तो जो भी आप चाह रहे हो उसको पहले विजुअलाइज कर लीजिए, उसको सोच लीजिए आप क्या चाह रहे हो, और फिर आप उसकी तरफ, आपकी डायरेक्शन सही हो कि आप उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, राइट। उसके बाद ये इतने बड़े टॉपिक्स हैं कि इन पे घंटों बात हो सकती है, बट आई जस्ट होप कि मैं आज आपको थोड़ा सा उसके बारे में इंसाइट्स दे पा रही हूँ। एक्सीलेंस जो एक चीज होती है, ये भी एक इंटेंजिबल है बिजनेस का, और मैंने अपने साथ ये महसूस किया, मैं बहुत सारे लोगों के साथ ये महसूस करती हूँ कि बहुत सारे लोग, इतना कुछ हमारे दिमाग में आज की डेट में चल रहा होता है, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, टीवी, घर की टेंशंस, अगर बच्चे हैं तो बच्चों की टेंशन, दुनिया भर की चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, और हम कोई भी चीज को एकदम कंसंट्रेट करके उसी जगह पे रह के उसको बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। और ये एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने अपना बनाया, उसको पहले मैंने खुद अपने पे यूज किया, राइट, और तभी मैंने आगे उस किसी को भी बताना शुरू किया कि आप जहां पर भी हैं वहां पर अगर आपका समय लग ही रहा है तो आप उसको अपना 100% दीजिए। फिर मत सोचिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वहां क्या हुआ यहाँ क्या हुआ। मैंने बहुत काबिल लोगों को अचीव करते हुए नहीं देखा क्योंकि वो वहां पर नहीं थे जहां, और अपना 100% नहीं दे रहे थे। काबिलियत थी पर वो वाला पार्ट नहीं कर पा रहे थे। बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद मेरे को ये रियलाइज हुआ कि ये जो की कंपोनेंट है ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जहां पर भी है गिव योर 100%। अगर आप किचन में हैं और आपको पता है आपने आधे घंटे किचन में रहना है, 100% दीजिए। आप देखिए आप कैसे एक्सेल करेंगे उस एरिया में। अगर आप कहीं और हैं, माना 10 चीजें और करने की है, पर आप वहां पर आपको टाइम स्पेंड करना ही करना है, तो क्यों ना आधा घंटा आप बेहतरीन से बेहतरीन अपना दे पाए। क्योंकि एक्सीलेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक्सीलेंस होता है जब आप कोई काम सही तरीके से करते हैं, कॉन्फिडेंस आता है आपको, आपको पोस्चर आता है, आपको तरीके आते हैं, राइट, और आप कोई भी काम अच्छी तरीके से कर सकते हो, राइट। और ये हमेशा जब भी आप किसी के साथ डील भी कर रहे हो या आप काम भी कर रहे हो, आप काम करेंगे, आप यहाँ से यूनिवर्सिटी से आप जो भी कोर्सेज कर रहे हैं, जिस भी डायरेक्शन में जिंदगी में आप जाना चाह रहे हैं, अगर आप ये चीज अपने ध्यान में रख लें, राइट। बच्चों के साथ मैंने जब काम स्टार्ट किया था मेरे बच्चे छोटे थे, तो मैंने अपने मेंटोर से पूछा, बिकॉज हर इंसान को एक मेंटोर चाहिए होता है, एंड आई एम वेरी लकी एंड प्रिविलेज कि मुझे बहुत ही बेहतरीन मेंटोर्स हैं हमारे। और मैंने उनसे पूछा कि मैं अपने बच्चों को भी मैं बैलेंस करके चलना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आप उन्हीं के साथ ही टाइम स्पेंड कीजिए, फिर फोन नहीं, कुछ और नहीं, कुछ और काम नहीं, देन बी देयर, राइट। और बच्चों की जो बच्चे आंखों से सुनते हैं, कानों से नहीं सुनते, राइट। उनको उनको आपकी पूरी अटेंशन चाहिए होती है। मैंने कितनी हाउसवाइफ्स को भी देखा है, मदर्स को भी देखा है कि वो 10 कामों में लगे होंगे और बच्चे बेशक वो घर में पूरा टाइम है, पर वो वाला जो 100% अवेलेबल फॉर योर चिल्ड्रन वो कई बार अचीव नहीं होता, राइट। सो ये पार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी एरिया में आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं, और थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए और थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करना सीखिए। कई बार हमारा एक डिफाइंड काम होता है और हमें लगता है हमें वही काम करना है बस। थोड़ा सा अगर आप उस काम को बढ़ा दें, थोड़ा सा हटके भी कुछ कर लें, जिसको इनिशिएटिव भी कहा जाता है, वो बहुत सही होता है। यहाँ पे मैंने अभी हाल ही में एक कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में अनिल ने कहा था, उसी कंटिन्यूअस प्रोग्राम के मध्य मैंने एक बहुत ही सक्सेसफुल सज्जन की का टॉक सुना था, जहाँ पे वो एक्सीलेंस के बारे में बात कर रहे थे, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि वो एक होटल में थे और वहां पर पूरा रिलैक्स होने गए थे और स्विमिंग पूल पे बैठे, तो उनको रियलाइज हुआ कि, और रिजॉर्ट था तो उनका जो पूल था वो कमरे से दूर था, और उनको रियलाइज हुआ अरे मैं अपने मोबाइल का चार्जर नहीं लाया। तो उन्होंने ऐसे ही बोला अपनी वाइफ को कि अरे लगता है मैं चार्जर भूल गया, तो चलो छोड़ो अब कौन जाएगा वहां पे। तो वहां पे आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था, बट ऑफ कोर्स होटल का स्टाफ आसपास होता है, और 10 मिनट के अंदर उनका चार्जर उनके पास आ गया, क्योंकि किसी ने उनका सुन लिया था और लॉबी में वो पर्सन गया, उसने उनका फोन पहले देखा और उसके बाद उसी फोन का चार्जर वो लेके आया। शायद उसकी वो ड्यूटी नहीं थी, पर यही एक्सीलेंस है। आप सोचिए कि कितना ज्यादा अच्छा उनको ये इम्पैक्ट पड़ा होगा कि क्या सर्विस है इस जगह की।
थोड़ा सा हटके भी अगर कोई काम करके आप बेहतरीन कर सकें, व्हाई नॉट, है ना। उसके बाद मेंटल टफनेस एंड डिसिप्लिन। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगी, जिंदगी फेयर नहीं है। अगर हम सोचें कि ये इसी तरह से क्यों होता है, या कई बार हम बहुत सारे लोगों को सुनते हैं ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ ही क्यों होता है, ऐसा अच्छा किया था और ये निकल गया, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट यही जिंदगी है, ये सभी के साथ हो रहा है। आप सोचिए, ये सभी लोग ये बातें कर रहे हैं। लाइफ इज नॉट फेयर, राइट। लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। वो कहते हैं ना, एक एक मुसीबत आई, ठोकर मारी, आपने उसको आगे जिंदगी में ठोकर मार के आगे बढ़े। ठोकर मार के मतलब उसको सॉल्व करके आप आगे बढ़े, और फिर एक और पत्थर आपके आगे खड़ा था, आपने फिर उसको हटाया और आप फिर आगे गए, और फिर एक और पत्थर पड़ा था, फिर आपने उसको करा। यही जिंदगी है, यही एक्सपीरियंसेस हैं, यही हमें सिखाता है, यही हमें मोल्ड करता है, राइट। यही हमें बताता है कि हम कैसे बेहतर बन सकें, हम बेहतर बन सकें, क्योंकि जिंदगी में प्रॉब्लम्स छोटी नहीं होंगी, हमें बड़ा होना पड़ेगा, राइट। और हम बड़े इन्हीं एक्सपीरियंस के सम टोटल से हम जिंदगी में बड़े होते रहते हैं। सो वहां पर मेंटल टफनेस जरूरी है कि यहाँ टफ होना है, ये समझना है कि जिंदगी का नाम ही यही है। जिंदगी ये चैलेंजेस हमको थ्रो करेगी करेगी, हम कैसे हो सके। माउंट एवरेस्ट हम सब जानते हैं, बहुत ऊंचा पर्वत है ना, बहुत लोगों ने चढ़ा है। तो बहुत शुरू में जो एक माउंटेनियर थे, मिस्टर हिलरी, जब वो चढ़ रहे थे तो 2-3 बार अनसक्सेसफुल रहे, नहीं चढ़ पाए। तो एक बार बेस कैंप में आए, नहीं चढ़ पाए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, और वहां पे एक बहुत बड़ी तस्वीर माउंट एवरेस्ट की लगी थी, और लोग वहां पे बैठ के स्ट्रेटेजीज डिस्कस कर रहे थे कि अगली बार क्या करना चाहिए। तो वो बहुत एक टक लगा के वो माउंट एवरेस्ट को देख रहे थे, और सडनली वो उस पिक्चर के आगे जाते हैं और कहते हैं कि ये तो मैं कॉन्कर करूंगा ही करूंगा, क्योंकि तुम्हारा साइज उतना ही है, तुम नहीं बढ़ रहे, पर हर अटेम्प्ट में मैं बढ़ता जा रहा हूं, मैं ग्रो करता जा रहा हूं। सो तुमको तो मैं डेफिनेटली कॉन्कर करूंगा। तो जिंदगी को भी इसी तरह से आगे लेना है, राइट। सो मेंटल टफनेस और डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे चीजें हैं, बट बहुत ज्यादा आगे आपको हेल्प करती हैं। डिसिप्लिन मतलब अपने आप को प्लान आउट कर लेना और फिर उस हिसाब से करना। कोई भी हैबिट बनाने के लिए 21 दिन लगते हैं, अगर आप उस हैबिट को बना ले तो वो जिंदगी में अच्छी हैबिट्स आपके सर्वेंट्स की तरह है, आपको हमेशा सर्व करेंगी, आपको हमेशा सपोर्ट करेंगी, आपकी जिंदगी को आगे चल के कंफर्टेबल बनाएंगी। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। और कोई भी चीज आज मुश्किल लग रही है ना, उसको करो। सोचिए ये मुश्किल है ना, इसको करके मैंने आसान बनाना है। चैलेंज ले लो, आसान बनाने, और देखो कैसे आसान होना शुरू हो जाता है। परसिवियरेंस, किसी काम में डट गए, लग गए तो पूरा करना है, खत्म करना है। समय, कुछ चीजों में समय लगता है, और मुझे लगता है जितनी सबसे ज्यादा जो वैल्यूएबल चीजें होती है ना, उनमें सबसे ज्यादा समय लगता है, राइट। परसिवियर करना। सक्सेस और नॉट सक्सेस की परिभाषा ही ये है कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो लकी नहीं होते। लक नाम की कोई चीज नहीं है। लक इज लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। अगर आप सही नॉलेज के साथ काम कर रहे हो तो आप लकी होते जाते हो, या जितना आप काम करते रहते हो उतना ही लकियर आप होते रहते हो। एवरेजेस आपके लिए काम करती रहती है। तो परसिवियरेंस ही है जो इंसान को सक्सेसफुल बनाता है। हम किसी की स्टोरी सुनते हैं और हम कहते हैं अरे वाह कितना सक्सेसफुल पर्सन है ये। वी डोंट रियलाइज कि परसिवियर, जहां पे बहुत सारे लोगों ने परसिवियर नहीं किया, लगे नहीं रहे, डटे नहीं रहे, वहां पर ये इंसान लगा रहा, डटा रहा। पीपल स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीपल स्किल्स, राइट। लोग व्यवहार, लोगों के साथ हम हमेशा, घर पे भी हो, कईयों के घरों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, बिकॉज हर इंसान का एक अपना ओपिनियन होता है, रिलेशनशिप इश्यूज हो जाते हैं, या बाहर बहुत सारे लोगों के साथ चैलेंजेस हो जाते हैं। क्योंकि लोक व्यवहार हमें, अगर हमने जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो हमें लोक व्यवहार आना चाहिए, इस पे हमें काम करना ही करना है। और 2-3 पॉइंट्स मैंने छोटे छोटे बनाए हैं। हमेशा आप किसी के साथ अग्री कीजिए। अगर आप नहीं भी अग्री कर रहे हैं, अगर मुझे कोई कुछ कह रहा है कि नहीं ऐसे होता है, तो मैं कहूँ नहीं, जैसे मैं नहीं कहूंगी तो मैं उसको भी डिफेंसिव कर दूंगी, और वो भी तैयार हो जाएगा, वो या हो जाएगी कहने के आगे अपना बताने के लिए। मैं कह सकती हूँ हाँ शायद डेफिनेटली अगर आपका ये व्यू पॉइंट है तो ठीक है, पर मुझे ये लगता है
पर मेरे हिसाब से, आप सही कह रहे हो, पर मेरे हिसाब से ऐसा भी हो सकता है, या मुझे पता है आप कैसा महसूस कर रहे हो, पर मेरी थिंकिंग ये है। या बहुत बार आप कह सकते हो कि ठीक है, आपकी थिंकिंग ये है, हमारी थिंकिंग ये है, तो क्यों ना हम यहाँ पे अग्री करें डिसअग्री करने के लिए, कि हमारे व्यू पॉइंट्स अलग हैं, तो आइए इस चीज पे अग्री कर लें और आगे बढ़ जाएं। अगर आप घर पे भी ये करके देखो, जहां पे जिस इंसान के साथ थोड़ा सा आपका हो जाता है, जो हमेशा हर घर में होता है, आप वहां से शुरुआत करो और आप देखोगे अमेजिंग रिजल्ट। स्माइल, कोई कभी भी आप स्माइल करते हो तो आप दूसरे जने को वैसे ही ईज कर लेते हो। तो जो चीज बाहर निकल के बहुत अजीब या कुछ प्रॉब्लम होनी थी, वो वहीं पे सॉल्व हो जाती है। स्माइल में बहुत पावर है, बहुत पावर है। इसको आप जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना सही है। रिस्पॉन्ड, डू नॉट रिएक्ट। चुप हो जाओ। कोई कुछ कह रहा है, बहुत कुछ कह रहा है अंदर से, आपका बहुत मन कर रहा है, बट चुप हो जाओ। वो कहते हैं ना, अपनी जुबान को काट के चुप हो जाओ। राइट? सोचो कि क्या है ना, थोड़ा पानी का, शांत पानी की तरह उसको विजुअलाइज करो। और फिर जब आपके बाद आप 1-2 मिनट चुप होके जब आपकी चीज निकलेगी, तो वो अपने आप ही सही होगी। या कोई बहुत टेंशन हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आप किसी को सुनाना चाहते हो, बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, रात बीतने दो, सो जाओ उस बात पे। अगले दिन अपने आप अगले दिन आप जब उठोगे तो आपको एक क्लैरिटी होगी, बिकॉज रात को जब आप सोते हो तो आपका ब्रेन और आपकी बॉडी हील कर रही होती है, और वहीं पे आपकी सबकॉन्शियस आपको इतने अच्छे रिस्पॉन्स के लिए देगी। तो स्लीप ओवर इट। राइट? प्रेज करिए लोगों को। हर इंसान प्रेज चाहता है, अप्रिसिएशन चाहता है। कितनी कमी है ये दुनिया में, इसका तो एपिडेमिक है ना। सो लोगों को प्रेज चाहिए। तो अगर आप दो अच्छे सिंसियर प्रेज कर दीजिए, ये नहीं कि कोई चीज गलत लग रही है और आप उसको बढ़ा के कहीं अरे नहीं बहुत अच्छा है। कोई ना कोई, हर इंसान में कोई ना कोई चीज होती है जिसको आप प्रेज कर सकते हो। राइट? सो दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल स्किल्स में और बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स पीपल स्किल्स में होते हैं, जो आपको बताते हैं कि लोक व्यवहार में आप कैसे बेहतरीन हो सकते हो। उसके बाद ग्रेटिट्यूड। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढिए जिसके लिए आप थैंकफुल हैं इस यूनिवर्स से। ये एक बहुत ही विशाल और अबंडेंट यूनिवर्स है, जिसमें बहुत क्षमता है आपको देने के लिए, बहुत ज्यादा क्षमता है आपको देने के लिए, प्रोवाइडेड आप थैंकफुल हैं। राइट? सो कितनी भी मुसीबतें हो, कुछ क्या रोज 2-3-4-5 चीजों की लिस्ट बना सकते हो आप, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा थैंकफुल हो अपनी जिंदगी में, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा बदतर वर्स भी हो सकती थी सिचुएशन, जिस भी सिचुएशन में है। आई नो ऑफ अ पर्सन, बातचीत हो रही थी और उन्होंने वो 1 घंटा मेरे साथ लगी रही, ये भी वो भी, बल्कि उन्होंने मुझे ही कन्विंस कर दिया था कि कैसे उनकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं है। और उसके बाद हमने जब बात करी कि इससे वर्स क्या हो सकता था, तो जब हमने वो चीजें डिस्कस करी, तो मेरे ख्याल से अगर उन्होंने मुझे 10 चीजें बताई तो 20 चीजें वो भी निकली जो इससे भी वर्स हो सकती थी। तो हमने कहा आओ इन्हीं चीजों के लिए थैंकफुल हो जाए। और जैसे ही वो ग्रेटिट्यूड और थैंकफुलनेस की बात हुई, उनका माइंडसेट चेंज होना शुरू हुआ। देखिए, बहुत सारी चीजें यहाँ होती हैं, जैसे ही आप इसको चेंज करते हो, अपना नजरिया चेंज करते हो, अपनी सोच चेंज करते हो, तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। अगर हम कोई चीज एक तरह से देख रहे हैं क्योंकि हमारा नजरिया वैसा है, अगर हम अपना नजरिया चेंज कर दें तो वो भी चीज चेंज हो जाती है। और ग्रेटिट्यूड के साथ ही एफर्मेशंस आती हैं। एफर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जीनी की कहानी हम सबने सुनी है कि लैम्प के ऊपर उसने रगड़ा और एक जीनी निकल के आया, और उस जीनी ने कहा कि बोलो मेरे आका तुम्हें क्या चाहिए और मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर दूंगा। ये जो यूनिवर्स है हमारे आसपास, ये एक जीनी है। इसमें इतनी अबंडेंस है कि आप अगर अफर्म करके ये यूनिवर्स में भेज रहे हैं, तो वो चीजें आपके पास आएंगी ही आएंगी। वो एक शाहरुख खान का डायलॉग नहीं था कि अगर आप कोई भी चीज को बहुत शिद्दत से चाहोगे तो पूरा कायनात आपके लिए जुड़ जाएगा ताकि वो आपको वो चीज को दे सके। तो आपको जो भी चीजें चाहिए, आपने उसको अफर्म करना है प्रेजेंट टेंस में। राइट? आप मेंटर मित्र से बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारी चीजों को, एफर्मेशंस को समझ सकते हैं। एफर्मेशंस पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं प्रेजेंट टेंस में जो आप लिखते हो, ताकि वो आपकी जिंदगी में होनी शुरू हो जाए। और हमने हम सिर्फ बोल ही नहीं रहे। आई एम प्रैक्टिसिंग एफर्मेशन फॉर इयर्स,
और मैं हैरान हो जाती हूँ जब कोई चीज हो जाती है और मुझे लगता है अरे ये ही तो मैं लिख रही थी और ये कितनी आसानी से हो गया। और फिर मैं ग्रेटिट्यूड देती हूँ यूनिवर्स को, राइट। एंड मेंटरशिप, कौन है जो आपको मेंटोर कर रहा है? बाहर की दुनिया में मेंटरशिप में लोग बहुत सारा पैसा लगाते हैं क्योंकि उनको पता है एक राइट कोच। आप एक स्पोर्ट्स पर्सन को सोचिए, उनके मेंटर्स होते हैं, उनके कोचेस होते हैं जो उनको बताते हैं हर चीज को, उनको तरीके से करते हैं। आई एम श्योर आपकी जो प्लेसमेंट एजेंसी है वहां पे कोई ना कोई ऐसी काउंसलिंग्स की बात हुई थी, आशिया मैम ने बात करी थी, तो वहां पे कोई ना कोई मेंटर्स हैं। बट आप सबमिट कीजिए उस मेंटर को, वहां पे सुनने के लिए तैयार हो जाइए। बिकॉज कई बार हम सुनते हैं समझने के लिए और कई बार हम सुनते हैं सिर्फ सुनने के लिए। मेंटरशिप में के प्रोग्राम, मेंटर के साथ जब आप जुड़ते हैं तो उनकी बातें आप समझने के लिए सुनिए, क्योंकि वो इतनी कुछ चीजें आपको कर सकते हैं। और आप फिर सोचिए कि कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, क्योंकि सुनना ही काफी नहीं है, उसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप छोटी छोटी तरीकों से उसको अप्लाई करते रहिए और आप देखेंगे कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट ये आपकी लाइफ में कर रहा है। सो मेंटरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो ये छोटी चीजें हैं जो हमने अपनी जिंदगी में करनी है ताकि हम आगे बढ़ सकें, राइट। और यही चीजें कर करके डिसीजन लेना है कि ये चीजें हमने बदलाव करनी है और इस पे हमने काम करना है। और अगर आप ये डिसीजंस लेके इस पे काम करना शुरू कर देंगे ये सारी चीजों पे, तो आप एक बहुत एम्पावर्ड लेडीज हैं, राइट। आप हो सकते हैं बहुत ही ज्यादा एम्पावर्ड। और आप सोचिए आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर पाएंगे, और आप ये सोचिए कि आप कितने लोगों को आगे इम्पैक्ट कर पाएंगे। आई होप आपने मुझसे ये पार्ट थोड़ा सा लिया कि एम्पावरमेंट और कुछ जिंदगी में करना, चाहे आप किसी भी तबके के हैं। मैं हमेशा लेडीज को कहती हूँ कि जरूर कुछ अपना होना चाहिए, बिकॉज अगर आप कर रहे हो तो आप सिखा भी रहे हो, आप एक नींव रख रहे हो जिंदगी में आगे बढ़ने की, राइट। और सिर्फ किसी को दिखाने के लिए ना कुछ कीजिए, अपने लिए कुछ कीजिए, ताकि आप एक बहुत मीनिंगफुल जर्नी जिंदगी की लीड कर सकें और सक्सेसफुल हो सकें, राइट। और मेरे से ज्यादा बड़ी खुशी नहीं होगी अगर कल मैंने मुझे नहीं पता कि कभी भी मुझे किसी की कहानी सुनने को मिले और कहे कि जी तब हमने डिसीजन लिया था या तब हमने कुछ जिंदगी में किया और देखिए आज हम कहाँ पहुंच गए। मेरे लिए उससे बड़ी सक्सेस जिंदगी में कुछ भी नहीं है। और आई थिंक जब आप भी उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहां पर आप कुछ चीजें सही करके आगे सिखाएंगे, तो आपके लिए भी उससे बड़ी सक्सेस जिंदगी में और कुछ नहीं होगी। सो विद दिस मैं खत्म करती हूँ और मैं वापस हैंड ओवर करती हूँ एमसी को। I would like to give a huge thanks to our speakers today for sharing their knowledge and important advice with us. And thank you, audience, for attending the webinar. Great thanks to the SNDT Women's University and the Tech Mahindra Foundation for collaborating with us. Now, I would like to request Ms. Apurva to share a few words. Thank you so much. Am I audible? Yes, Apurva, you're audible. Thank you. So, thank you very much for giving us this opportunity. I, Apurva Deshpande, on the behalf of SNDT TMF Smart Center, firstly, I would like to thank the orators for the session today, Anil Sharma sir and Pooja Avasti ma'am. Secondly, I would like to give a bunch of thanks to Vridhi, Ankur and the entire team of Mentor Mitra, and also SNDT TMF Smart Center for collaborating for this webinar. And last but not the least, I would like to thank all the participants of the webinar for being a wonderful audience. Before concluding, I would like to share that the feedback link for the webinar will be shared in the chat boxes in the YouTube comment section. Your certificate for the webinar will be depending on the feedback link. So I would request all the participants of the webinar to kindly fill the feedback link, which will be active for the next 4 hours. Thank you. Thank you so much.